Click here to subscribe our channel. Do not forget to press bell icon to get regular updates of free videos. This class is being recorded for Economics Honors Semester 3. Those who are about to enter in Semester 3 or those who have appeared in Semester 2 exam. Semester 3 course content for micro. Micro will be having intermediate level. So it is intermediate micro 1 in Semester 3. Intermediate macro 2 will be in Semester 4. So in Semester 3 you have to study micro and macro both, and the level will be intermediate. First year में you have done introductory level. So semester 1 was introductory micro and semester 2 was introductory macro. So first year was introductory. Second year semester 3 and semester 4 both will be intermediate level micro and macro, and now you have to deal with micro and macro both simultaneously. Class content first class में first of all write down the content part of micro 1. Content part of micro 1 will include first unit is consumer theory. Unit number 1 will be consumer theory. Within bracket write down weightage. So weightage for first unit will be 60%. In terms of marks, it will be 45 marks. You have to attempt 3 questions out of 4. 4 questions will be given to you. You have to choose any 3. This first unit will start from chapter number 2. Chapter number 2, budget constraint. Chapter number 3 will be preference. Chapter number 4 utility. Chapter काफ़ी लॉजिकल फॉर्म में अरेंज्ड है. First of all, we will discuss what consumer can afford to buy. So budget constraint will indicate what consumer can afford to buy. What consumer wants to buy, that is his preference. And if consumer is choosing a specific bundle, how much utility he will get, that will be calculated from utility function. By combining all 3 chapters, you will move to chapter number 5, that will be optimal choice. What consumer can afford to buy, that is budget constraint. What consumer wants to buy, that is his preference. What consumer will actually buy, that will be his choice. So you have to maximize utility subject to budget constraint. But these are complete chapters, full chapters हैं. Optimal choice पे consumer जो quantity buy करता है, that will be referred as his demand. So demand will be chapter number 6. Club first 5 chapters into 1 and consider these chapters as basic chapters of consumer theory. These are the basic chapters of consumer theory. With obviously in final paper the weightage from these basic chapter will be less and more focus will be on application based chapter, which will start from chapter number 7 onwards. 7th chapter is a revealed preference. Chapter number 8 will be Slutsky equation. Chapter number 9 will be buying and selling. Chapter number 10 intertemporal. Temporal means time period. Intertemporal choice. Then write down chapter number 12 and then write down chapter number 11. Chapter number 12 uncertainty, and chapter number 11 choices involving risk. 12 और 11 को कंबाइन करके कह सकते हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बट 12 को पहले लिखा है बिकॉज चैप्टर नंबर 7 to 12
rather we can say chapter number 2 to chapter number 12. A reference book will be Hallvarian. In Hallvarian, remember, there are two books. One will be the textbook and the other will be workbook or workout. तो माइक्रो की रीडिंग बाय करते समय याद रखेंगे, यू हैव टू बाय टू स्पायरल, वन फॉर द रीडिंग एंड द अदर फॉर द वर्कबुक. Workbook will containing only questions and all concept will be given only in the textbook. Textbook for concept and for problems you have to cover workout chapter number 2 to chapter number 12. 11th को बाद में लिखा है because this 11th chapter a reference book will be Winston. 11th chapter के लिए बुक होगी Winston. तो chapter number 2 to 11 ये फर्स्ट यूनिट है एंड वी हैव टू डील विथ ओनली 2 यूनिट. सेकेंड यूनिट इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. प्रोडक्शन एंड कॉस्ट with a weightage of remaining 40%. In terms of marks, 30 marks. You have to choose any 2 question out of 3. First section में 4 question है, you have to choose any 3. Second question में 3 question है, you have to choose any 2. And second unit is chapter number 9, chapter number 10 and chapter number 11. 9th chapter production function. 10th chapter is cost and chapter number 11 and last chapter is profit maximization. A reference book for second unit will be Nicholson and Snyder. Second unit के लिए reference book होगा Nicholson and Snyder. So mainly 2 books we have to cover. One is Hallvarian and the other is Nicholson and Snyder. Below that आप इसमें mention कर लेंगे the approach of this question paper will be numerical. So mostly you will get numerical problems. 2/3 will be around numerical, 1/3 will be analytical and descriptive. But 2/3 question will be solve this, calculate this, find this. Very few questions like describe this, explain this. तो क्वेश्चन का जो वर्ड होगा, नेचर होगा डिफरेंट है. न्यूमेरिकल अप्रोच होगा सेम 3 और सेम 4 दोनों के अंदर. तो सेकेंड ईयर कंप्लीटली इट विल बी इंटरमीडिएट लेवल फॉर माइक्रो एज वेल एज मैक्रो. I will start with chapter number 3 and 4 and then we will move to budget constraint, then I will go to choice, demand and then so on. तो अभी जो फर्स्ट क्लास है ये प्रेफरेंस और यूटिलिटी की हेडिंग डालनी है. तो लीव फर्स्ट पेज ब्लैंक. इन केस अगर कोई अपग्रेडेशन होता है सिलेबस में तो वो इन्फॉर्मेशन आप फर्स्ट पेज के ऊपर लिख दीजिएगा. तो राइट ऑन द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन द फर्स्ट शीट एंड फ्रॉम सेकेंड पेज ऑनवर्ड्स mark the heading preference and utility. Preference and utility, that means chapter number 3 and chapter number 4. Chapter number 3 and chapter number 4. Preference is chapter number 3, utility is chapter number 4. ठीक है, ये कंबाइंड फॉर्म में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं. Now in these 2 chapters, in 3rd chapter we have to explain everything graphically, and in chapter number 4 all will be calculation or all will be utility function. You have to calculate utility, but in chapter number 3 it will be on graphical form. Now to begin with, whenever I will say X bundle, कुछ basic information पहले समझ लेंगे. When I say X bundle, it means x1 comma x2. So there is some quantity of good 1 and some quantity of good 2 in that bundle. And when I say y bundle का मतलब है y1 comma y2. Let us say x bundle has 6 kg of rice and 4 kg of wheat, and y bundle has 5 kg of rice and 5 kg of wheat. X bundle has 6 kg of rice and 4 kg of wheat, and Y bundle has less rice and more wheat.
now question is, out of these two bundle which bundle consumer will prefer? एक बंडल में 6,4 है, दूसरे में 5,5 है. which bundle will be preferred? Now obviously which bundle you will prefer? Your preference will depend upon utility function. I will prefer that bundle which gives me higher utility. But higher or lower का मतलब है you have to calculate those utility. And in order to calculate you must know utility function. अभी लिखेंगे नहीं, जा समझेगा. If I say utility function is x1 into x2, so what does it mean x1 into x2? If you consume this bundle x1 x2 6,4, you get a utility of 24. 6 into 4 करना है. And if you consume a bundle 5,5, you get a utility of 5 into 5, that is 20. So if your utility function is x1 into x2, then from y bundle you get a utility of 25, and from x bundle you get a utility of 24. Then you can say you prefer y bundle because you get more utility from that bundle. But if utility function is written as x1 plus x2, then what is utility of 6,4? 6 plus 4, that is 10. And utility from 5,5, 5 plus 5, that is also 10. So if your function is x1 plus x2, then consumer is indifferent between these two bundle because he get same level of utility. From both bundle he get a utility of 10. फंक्शन के कई फॉर्म पॉसिबल है. मैं एग्जांपल के लिए स्टार्ट में लिख रहा हूं. इफ फंक्शन इज रिटन एज मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2, इन दैट केस व्हाट इज वैल्यू ऑफ मिनिमम ऑफ 6,4? 6,4 में मिनिमम वैल्यू 4, सो यूटिलिटी इज 4. और 5,5 में मिनिमम वैल्यू 5, सो यूटिलिटी विल बी 5. सो अगेन यू प्रेफर y बंडल ओवर x बंडल अकॉर्डिंग टू दैट थर्ड फंक्शन. If फंक्शन इज, पॉइंट सिर्फ ये समझना है कि किस बंडल को आप प्रेफर करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू राइट यूटिलिटी फंक्शन और हाउ यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन टू यू. इफ इट इज गिवन x1 into x2, जस्ट मल्टीप्लाई इट. इफ इट इज x1 plus x2, आपको उस बंडल को ऐड कर देना है. मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2, कब मिनिमम कहते हैं, कब हम ऐड करते हैं, दैट पॉइंट विल बी एक्सप्लेन. In place of minimum, if it is written maximum of x1 comma x2, in that case what is utility? Maximum of 6,4 is 6 and maximum of 5,5 is 5. So in that case you prefer x bundle over y bundle because utility from x is 6, utility from y is 5. If I write utility function as x1 to the power 0.5, x2 to the power 0.5, तो आप ये बंडल फंक्शन में पुट कर देंगे, जो नंबर आएगा दैट विल बी अ मेजर ऑफ यूटिलिटी. फंक्शन कुड बी रिटन एज यूटिलिटी फ्रॉम x1 कॉमा x2 एज log x1 plus x2 और root x1 plus x2. It could also be written as x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर. तो फंक्शन के रिमेंबर कई फॉर्म है. रेफरेंस बुक में वेरिएंट के अंदर 5 फॉर्म गिवन है. एक जगह इनको लेस करके इसके आगे फंक्शन का नाम लिखते जाएंगे. जितने भी फॉर्म आप यहाँ लिख रहे हैं, इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन विल बी रेफर्ड एज वेल बिहेव्ड. So whenever I say write well behaved preference function, so क्वेश्चन में कहा जा रहा है well behaved लिखना है, then you have to write x1 x2. अगर x1 plus x2 है, then good 1 and good 2 will be perfect substitute. Why it is called perfect substitute? Just wait for 5 minutes. If it is written minimum, you will call it perfect complement. मैक्सिमम के केस में जस्ट मैक्सिमम का फंक्शन है x1 टू द पावर x2 टू द पावर, दैट विल बी रेफर्ड एज कॉब डगलस. लाइक प्रोडक्शन फंक्शन में अपने कॉब डगलस का फॉर्म कर रखा है.
If it is written log x1 plus x2 or root x1 plus x2, then it is called quasi-linear. Function is said to be quasi-linear when it is partly linear and partly non-linear. In that way it is called quasi-linear. Now what is the meaning of linear and what is the meaning of non-linear? That will be explained in this sixth form. And seventh form is concave preference या फिर concave function. तो रिमेंबर 7 पॉपुलर फॉर्म है जो क्वेश्चन में यूज हो रहा है. आउट ऑफ दैट फर्स्ट इज गिवन इन वेरिएंट, सेकंड इज गिवन, थर्ड इज गिवन, फिफ्थ वन इज गिवन एंड क्वासी-लिनियर इज गिवन. ये मैक्सिमम का केस और कॉनकेव ये मैं ऐड कर रहा हूँ क्लास के लिए, बिकॉज 10 ईयर के क्वेश्चन में आपको कॉनकेव का भी क्वेश्चन मिलेगा और मैक्सिमम वाले फंक्शन का भी क्वेश्चन मिलना है. तो एट वन प्लेस जस्ट कॉपी दिस पॉइंट्स. आप इस पॉइंट को एक जगह कॉपी करके रखेंगे और इसको याद करके भी रखिएगा. फ्रॉम सेकेंड क्लास ऑनवर्ड्स वेन एवर आई विल से राइट वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन, सो इन प्लेस ऑफ वेल बिहेव्ड व्हाट यू विल राइट x1 इंटू x2. अगर कहा जा रहा है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट देन x1 प्लस x2. If it is perfect complement then it is minimum of x1 comma x2. मैक्सिमम है तो मैक्सिमम ऑफ x1 comma x2. कॉब डगलस के केस में x1 टू द पावर x2 टू द पावर. क्वासी लीनियर है देन इट इज आइदर log x1 प्लस x2 और रूट x1 प्लस x2. और कॉनकेव में x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर. तो अगर ये वर्ड का यूज हो रहा है तो आपको फंक्शन पता होना चाहिए, या फिर अगर ये फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन अगर गिवन है तो रिमेंबर अगर ये फंक्शन लिखा है x1 इंटू x2 देन व्हाट यू हैव टू कॉल इट वेल बिहेव्ड. इफ इट इज x1 प्लस x2 इट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. इफ इट इज मिनिमम ऑफ x1 x2 इट इज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट. इफ इट इज मैक्सिमम और इफ इट इज पावर देन इट इज कॉब डगलस. log x1 या रूट x1 के केस में क्वासी लीनियर है और लास्ट में x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर है. पहले क्लास में ये स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, ये डिटेल में एक्सप्लेन करते जाना है. अभी आज की क्लास में ये 3 फंक्शन तक कर लेंगे, x1 इंटू x2, फिर x1 प्लस x2 और मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2. सो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन है वेल बिहेव के लिए. ठीक है, ये एक जगह लिस्ट हमने कर लिया. अब एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते जाना है. फर्स्ट इज वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस. अब आप ये बताओ अगर वेल बिहेव्ड इक्वेशन लिखा है या हेडिंग है, हाउ यू विल राइट यूटिलिटी फंक्शन. इट विल बी x1 इंटू x2. तो x1 इंटू x2 करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा दैट प्रोडक्ट विल मेजर यूटिलिटी. सो इफ आई से its product is 100, so what are the different combination of x1 and x2 जिसका प्रोडक्ट 100 हो जाए. गुड 1 और गुड 2 के कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसका प्रोडक्ट 100 होगा. यहाँ लिखेंगे x1, यहाँ लिखा x2. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 5 यूनिट ऑफ गुड 1 एंड 20 यूनिट ऑफ गुड 2 देन यूटिलिटी विल बी 5 इंटू 20 100. If I take another bundle 10 comma 10 then also utility will be 100. And if you take a third bundle like 20 comma 5 even then utility will be 100. That means utility from all 3 bundle is same, and when you join all 3 bundle you will get indifference curve. But question is, can we join these 3 point with a straight line? क्या इन तीनों पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं? स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट तभी होगा जब स्लोप इंडिफरेंस कर्व का कांस्टेंट हो. तो क्या इस फंक्शन में स्लोप कांस्टेंट है? स्लोप कैलकुलेट करने के लिए अगर इस फंक्शन का मुझे स्लोप निकालना है तो रिमेंबर मैथमेटिकली स्लोप कैलकुलेट करेंगे dy बाय dx से. बट y एक्सेस पे क्या लिख रहे हैं यहाँ पे x2, x एक्सेस पे क्या लिखा है x1. तो स्लोप निकालने के लिए आपको करना है dx2 बाई dx1.
पहले न्यूमेरिकल से जस्टिफाई कर लेना। स्लोप हो गया dx2 by dx1, so if x1 into x2 is 100 then x2 is equal to 100 upon x1, therefore dx2 upon dx1 is equal to, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेना है, 100 by x1 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x1 विल बी माइनस 100 अपॉन x1 स्क्वायर, और dx2 by dx1 you get slope. So how much is slope or how much, what is slope at point A? Point A पे गुड 1 की क्वांटिटी 5 है, आप 5 यहाँ लिख जाइए, तो 5 स्क्वायर हो गया 100 by 25, 4 या -4। नेक्स्ट पॉइंट पे बी पॉइंट पे गुड 1 की क्वांटिटी है 10 आपको उस फंक्शन में वहाँ पुट कर देना है। 10 अगर इस फंक्शन में पुट कर देते हैं तो ये 10 स्क्वायर 100 हो गया, 100 by 100 -1, और इस पॉइंट पे थर्ड पॉइंट पे स्लोप आ जाएगा -1/4। 20 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। स्लोप एट पॉइंट ए इज -4, देन इट इज -1, देन इट इज -1/4। स्लोप हमेशा एब्सोल्यूट इंटरप्रेट किया जाएगा। इग्नोरिंग द साइन टेल मी स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो इग्नोरिंग दिस साइन it is 4, 1 and 1/4. Slope is declining. Because slope is declining, therefore it will be convex to origin. If slope remains constant at every point, then it will be a straight line. And if slope is increasing, then it will be concave to origin. Since slope is declining, therefore indifference curve is convex to origin. But don't generalize the concept. It is convex to origin when function is being written in the form of well-behaved form. It is not always the case. Indifference curve is usually in convex to origin. That is why it is called as well-behaved. अब indifference curve का जो normal form है, if it is written x1 into x2, then it is convex to the origin. ये कंटेंट आपने इंट्रोडक्टरी मैक्रो में सेमेस्टर 1 के अंदर कर रखा है, उस कुछ पॉइंट्स को आपको रिकॉल करना है, और रिकॉल करने के लिए सर्टेन अजम्पशंस को पहले रिकॉल करेंगे। अजम्पशंस रिकॉल करेंगे एज वेल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी को रिकॉल कीजिए, सेम 1 के अंदर कर रखा। इंडिफरेंस कर्व इज कैरेक्टराइज्ड बाय, indifference curve is negatively sloped, number 1. It is convex to origin, number 2. Two indifference curve cannot intersect, and higher indifference curve represent higher level of utility. सेमेस्टर 3 के लेवल पे आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है इसमें कहा जाएगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आपको प्रॉपर्टीज समझ में आना चाहिए, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इसके साथ इसके असम्पशन में इंक्लूड होते जाएंगे। इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, पहली प्रॉपर्टी है ऐसे नेगेटिवली स्लोप्ड। क्वेश्चन मेरा ये कि व्हाई इट इज नेगेटिवली स्लोप्ड, व्हाई नॉट इट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। 1 लाइन का रीजन इसके नीचे लिखते जाएंगे। इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड ड्यू टू assumption of monotonicity, due to assumption of monotonicity, which means आगे फायदे लिखेंगे। Indifference curve is negatively sloped due to assumption of monotonicity, which means more is preferred, or more is better. It also means that marginal utility is positive. इन सब का मतलब एक ही है, मोर इज प्रेफर्ड कह दे या मोर इज बेटर कह दीजिए या मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव कह दीजिए। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव का मतलब होता है एज आई कंज्यूम मोर ऑफ एनी यूनिट टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज। सिंस टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बाय कंज्यूमिंग मोर, that is why I prefer to consume more of it. For example, whether do you prefer more marks or less marks, then obviously your answer will be more marks.
बट इफ आई से वेदर यू प्रेफर टू स्टडी मोर और स्टडी लेस, तो स्टडी मोर और स्टडी लेस में योर आंसर विल बी स्टडी लेस. दैट मीन्स स्टडी इज बीइंग कंसीडर्ड एज बैड. बैड का मतलब होता है लेस ऑफ इट इज प्रेफर्ड, बट व्हेन आई से गुड इट मीन्स मोर इज बीइंग प्रेफर्ड. तो इन माइक्रो यू डिवाइड गुड्स इनटू टू पार्ट, गुड कमोडिटी एंड बैड कमोडिटी. फॉर गुड कमोडिटी मोर इज बेटर, for bad commodity less is better. So is rain good or bad? Now again it depends how much rain and at what time. If your utility is increasing then it is good, if your utility is declining then it is bad, and if your utility is unaffected then it will be called as neutral commodity. So commodity can be good or it can be bad. For good commodity more is preferred, for bad commodity less is preferred. But how you will judge it numerically? For that numerical aspect remember only one line. If marginal utility of good is positive then more is preferred. When marginal utility of good will be negative then less is preferred and good will be called as bad commodity. And if marginal utility is zero then it will be a neutral commodity. So commodities can be good, it can be bad or it can be neutral. But right now we are studying only good commodity. We will take different cases of indifference curve. But अभी further timing क्या रखेंगे, we are discussing about only good commodity. अब ये वन पॉइंट है, मैं साथ में रिलेट करता जा रहा हूँ क्वेश्चन के साथ कि ये किस फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा. रिमेंबर यू विल गेट अ बुकलेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट. जो ऑनलाइन क्लास कर रहे होंगे उनको ये कुरियर के फॉर्म में मिल जाएगा या फिर स्कैन करके अपलोड हो जाएगा साइट पे, या फिर वो सेंटर से आके कलेक्ट भी कर सकते हैं. इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वर्कबुक के या पास पेपर है, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होगा. सो यू विल गेट अ बुकलेट. तो उस बुकलेट के एक दो क्वेश्चन मैं भी क्लास में दिखा रहा हूँ. पास पेपर के अकॉर्डिंगली जैसे इस कंसेप्ट पे ध्यान देगा. इंडिफरेंस का नेगेटिव स्लोप है, इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन 2013 में 13 के इस क्वेश्चन को जरा रेफर करेंगे. ठीक है, ईयर में मार्क कर लिएगा 2013 अपने रजिस्टर में. क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कह रहा है कंसीडर द यूटिलिटी फंक्शन 4x² + 6y and examine the assumption of more is better is satisfied for each good. Whether more is better का assumption satisfy हो रहा है या नहीं हो रहा है. इस क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूँ, आपको करना क्या बता रहा हूँ. फंक्शन को सिर्फ रजिस्टर में कॉपी कर लेंगे जगह. तो फंक्शन क्या लिखा हुआ है, फंक्शन है 4x² + 6y. आपको सिर्फ उससे मतलब है. तो यूटिलिटी का फंक्शन है 13 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है यूटिलिटी फ्रॉम x, y. ऐसे मैंने लिखा 4x² + 6y. फंक्शन ये एग्जामिन करना है कि मोर इज बेटर सेटिस्फाई हो रहा है नहीं. अब मोर इज बेटर होल्ड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होनी चाहिए. एंड हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए x का अगर फाइंड करना है then you will differentiate utility function with respect to x keeping y constant. So 4x² का differentiation 8x. x quantity it can't be negative, that means it is positive value. Since marginal utility of x is positive, therefore more is better assumption satisfied. मोर इज बेटर का अदम्पशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है. सिमिलरली बताओ मार्जिनल यूटिलिटी या वाई कैसे निकालेंगे. यूटिलिटी के फंक्शन को वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, तो 6y का डिफ्रेंशिएशन 6 पॉजिटिव नंबर है. सिंस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज पॉजिटिव देयरफॉर मोर इज बेटर अदम्पशन इज सेटिस्फाइड फॉर गुड वाई ऑल्सो. आपको बस यहाँ तक लिखना था. 1 नंबर 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन कई सारे मिलेंगे पेपर में. तो फर्स्ट अदम्पशन लिखने को नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी लिखने को नहीं आ रहा, बट इफ़ यू नो दैट प्रॉपर्टी उसका एप्लीकेशन हो.
मोनोटोनिसिटी को अगर जज करना है, यानी मोर इज बेटर को अगर जज करना है, तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है। एक्स के लिए भी निकालेगा, वाई के लिए भी निकालेगा। अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो कहेंगे मोर इज बेटर असम्पशन नॉट सेटिस्फाइड, मोनोटोनिसिटी असम्पशन नॉट सेटिस्फाइड। तो साथ के साथ ये क्वेश्चन भी आप रजिस्टर में करते जाओगे, सो दैट रेलिवेंस पता चलेगा कि जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं और जो पेपर का क्वेश्चन है वो कोरिलेट हो रहा है या नहीं, उस पर ध्यान रखना आप। नाउ आफ्टर फर्स्ट प्रॉपर्टी टेक सेकंड प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमने इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप ड्यू टू assumption ऑफ मोनोटोनिसिटी। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकंड वन। सेकंड प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व इज strictly convex. Indifference curve is strictly convex to origin. Indifference curve is strictly convex to origin. Second property लिखेंगे indifference curve is strictly convex to origin. Now when I say indifference curve is strictly convex, it will be due to two reasons. तो रजिस्टर में लिखें IC is strictly convex to origin due to following two reasons, and following two reasons are: A, first, average is preferred over extreme. Average is preferred over extreme, but if I say it is preferred, a bundle can be preferred only if utility from that bundle is more, and utility depends upon the function. And which function we are studying? We are studying well behaved, and how to write it? Well behaved is x1 into x2. अब इसको अप्लाई करेंगे। When I say average or extreme, it means this: if I take one extreme as 5, 20, so what is utility of 5, 20? I will write it as utility from 5, 20 equal to 5 into 20, 100. That is 1. If you take another extreme, 20, 5, so utility from 20, 5 is 20 into 5, 100. If you take average of these two bundles, then if you take average of these two bundles, then what will be the bundle? So what is the average of 5, 20 or 5 and 20? 5 और 20 का एवरेज हो गया 12.5, 20 और 5 का एवरेज 12.5. So what is utility from this bundle? 12.5 into 12.5. But obviously this value is more than 100. But if it is more than 100, it means utility is more. So from average bundle you get more utility. Now if you get more utility from average bundle, तो क्या ये एवरेज का बंडल 12.5 और 12.5 सेम इंडिफरेंस कर्व पे लाई करेगा? In order to lie on same indifference curve, utility must remain same. But from this bundle, utility is more. Since utility is more, it means this bundle will be on higher indifference curve. ये 12.5 और 12.5 must be on a higher indifference curve. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं: since utility from average bundle is more than utility from extreme bundle, therefore indifference curve is strictly convex. Indifference curve is strictly convex because of that. पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से आर्बिट्रली 2 पॉइंट ले लेते हैं। तो मैंने 5, 20 ले लिया, 25 ले लिया, दोनों की यूटिलिटी सेम आ गई, और जो 2 एक्सट्रीम बंडल लेंगे उसका एवरेज ले लेंगे। अगर एवरेज की यूटिलिटी भी सेम हो और एक्सट्रीम की यूटिलिटी भी सेम हो, फिर तो वो सबको सारे पॉइंट सेम लाइन के ऊपर लाई करेंगे, देन ऑब्वियसली लाइन विल बी स्ट्रेट। बट सिंस एवरेज गिव्स मोर यूटिलिटी एंड एक्सट्रीम गिव्स लेस यूटिलिटी, देयरफॉर द इंडिफरेंस कर्व इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब आप इस क्वेश्चन को अगर अप्लाई करो पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो बेसिक वाले चैप्टर से होगा, और बेसिक वाले चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन कई सारे मिलेंगे। जैसे इस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको शो कर रहा हूँ। इस कंसेप्ट के ऊपर
वन क्वेश्चन का फॉर्म है 2014 में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का हमने एक क्वेश्चन किया था, प्रॉपर्टी नंबर 2 का भी आप एक क्वेश्चन देख लीजिए। कॉन्वेक्स ओरिजिन होने के लिए भी मैंने पहला रीजन लिखा है एवरेज, प्रेफर्ड और एक्सट्रीम। ये क्वेश्चन 2014 का है। इसमें 3 फंक्शन गिवन है। यूटिलिटी फ्रॉम x, y इज इक्वल टू x इंटू वाई, वन फॉर्म। अब अगर इसको क्वेश्चन में यहाँ शो कर दो, 14 फर्स्ट क्वेश्चन का ईयर मार्क करेंगे 14। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी फंक्शन रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस दैट सेटिस्फाई द अजम्पशन ऑफ स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी। इन तीनों अजम्पशन फंक्शन में कौन से फंक्शन में स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी सेटिस्फाई हो रही है। अब आपको मालूम है कि स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स होने के लिए एवरेज मस्ट बी प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम। तो आउट ऑफ दीज 3 कौन कौन से सेटिस्फाई हो रहे हैं? आउट ऑफ दीज 3 कौन कौन से फंक्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं? तो सेटिस्फाई होने के लिए फर्स्ट फंक्शन तो वेल बीहेव्ड हो गया, उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप ये सेकंड और थर्ड बताएंगे, सेकंड और थर्ड, और अगर शो करना है तो पेपर में आप उसको इस फॉर्म में शो कर सकते हो। अगर फर्स्ट के लिए दिखाना है तो मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा, यूटिलिटी फ्रॉम 5, 20, 100, यूटिलिटी फ्रॉम 20, 5, 100, and utility from 12.5, 12.5 is 12.5 into 12.5. Since utility from average is greater than utility from extreme, therefore it is strictly convex. Strictly convex के पीछे रीजन है। ये तो आपने कर लिया था। आप बी पार्ट बताइएगा। यूटिलिटी फ्रॉम x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये कॉन्वेक्स होगा? सेम प्रोसेस से अप्लाई करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये कॉन्वेक्स होगा? यू कैन यूज सेम वैल्यू को साथ कर सकते हैं। यूटिलिटी फ्रॉम 5, 20, तो 5, 20 का लिखा तो आपको यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर कर देना। तो ये नंबर आ गया आपका 5 स्क्वायर एंड 20 स्क्वायर, दैट इज 425। यूटिलिटी फ्रॉम 20, 5, यहाँ 20 लिखा, यहाँ 5 लिखा, ये भी हो गया 425। एंड यूटिलिटी फ्रॉम 12.5, 12.5, ये हो जाएगा 12.5 स्क्वायर प्लस 12.5 स्क्वायर। कोई दूसरे एग्जाम्पल के साथ इसे इसका स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद आप आंसर कर सकते हो, या इजी एग्जाम्पल अगर लेना है तो मान लिया यहाँ पे मैंने लिखा 0, 10, पैरेलल में यहाँ लिख दे रहा हूँ। यूटिलिटी फ्रॉम 0, 10, तो 0, 10 की यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 100। यूटिलिटी फ्रॉम 10, 0, इसकी यूटिलिटी भी हो जाएगी 100। एंड व्हाट इज एवरेज? यूटिलिटी फ्रॉम 5, 5, तो 5, 5 की क्या हो जाएगी? 5 यहाँ भी लिखोगे, 5 यहाँ भी लिखेगा, 25 प्लस 25, 50। तो एवरेज की यूटिलिटी कम है और एक्सट्रीम की ज़्यादा है, देयरफॉर इट इज़ नॉट कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कब होना था? जब एवरेज की यूटिलिटी ग्रेटर है। जब एवरेज की यूटिलिटी ग्रेटर आएगी तो कॉन्वेक्स होगा। ये नंबर भी अराउंड 144 उधर हो जाएगा, अराउंड 288 और अराउंड 300 वैल्यू। थर्ड फंक्शन जो गिवन है इस क्वेश्चन में, यूटिलिटी फ्रॉम x, y, ये लिखा है मैक्सिमम ऑफ x, y। तो बताना मैक्सिमम का जो फंक्शन होगा क्या ये कॉन्वेक्स होगा? यू सेम नंबर 0, 10, तो मैक्सिमम ऑफ 0, 10 इज 10। 10, 0 वो भी 10 हो गया और उसका एवरेज हो जाएगा 5, 5। सो मैक्सिमम ऑफ 5, 5 विल बी जस्ट 5। तो अगेन एवरेज यूटिलिटी कम है, एक्सट्रीम की यूटिलिटी ज़्यादा है। तो ये दोनों ही फंक्शन कॉन्वेक्स नहीं है, बिकॉज यूटिलिटी फ्रॉम एवरेज इज लेस देन द यूटिलिटी फ्रॉम एक्सट्रीम। ओनली फर्स्ट फंक्शन वाज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, आपको कई सारे मिलने हैं। तो पहली प्रॉपर्टी थी नेगेटिव स्लोप,
सेकेंड प्रॉपर्टी होगी इट इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू ओरियन। दो प्रॉपर्टी और हैं जिसको आप सिर्फ रजिस्टर में मेंशन कर लेंगे, उसको इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं। और थर्ड है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट intersect, and why indifference curve cannot cross? Indifference curve cannot cross due to assumption of transitivity। वन लाइन का आंसर लिखते रहेंगे। टू इंडिफरेंस कर्व cannot cross due to the assumption of transitivity। और transitivity का मतलब आई थिंक आप रिलेट कर सकते हो। If x is preferred to y, y is preferred to z, then x must be preferred to z। तो बताना अगर दो आई से क्रॉस कर जाए तो प्रॉब्लम क्या है? इफ टू इंडिफरेंस का क्रॉस ईच अदर देन व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? इफ आई टेक एनी बंडल से एक्स यहाँ मार्क किया और यहाँ मैंने वाई मार्क किया, एक्स बंडल और वाई बंडल सेम इंडिफरेंस कर्व पे हैं, सेम यूटिलिटी होगी। एक्स और जेड ये भी सेम इंडिफरेंस कर्व पे हैं तो इनकी भी सेम यूटिलिटी होगी। बट इफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड एक्स इज इक्वल टू जेड, देन फ्रॉम दिस टू व्हाट इम्प्लाइज y must be equal to z, but y और z की यूटिलिटी सेम होने के लिए they must be on same indifference curve, but y and z are not on same indifference curve। assumption transitivity का है और जिसकी वजह से दो IC कभी क्रॉस नहीं करते हैं, तो बस उसको आप बेसिक फॉर्म में याद रखेंगे कि indifference curve cannot intersect। and the last property was higher indifference curve represent higher utility। higher indifference curve represent high utility, and again the reason is due to monotonicity। more is preferred। more is preferred दो जगह रीजन आ रहा है, एक तो नेगेटिव स्लोप के लिए भी आएगा, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए भी और लास्ट प्रॉपर्टी के लिए भी। तो चार प्रॉपर्टी याद रखेंगे। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप नेगेटिव है, इट इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू ओरियन, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट, एंड हायर इंडिफरेंस का रिपेंड हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। वन मोर पॉइंट जो आपको यहाँ पे फर्दर याद रखना है वो प्रॉपर्टी नंबर 2 के साथ है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में लिखा है इंडिफरेंस का स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू रीजन। कॉन्वेक्सिटी के एक्चुअल में दो रीजन है, तो फर्स्ट रीजन तो आपने एवरेज प्रेफर्ड और एक्सट्रीम का कर लिया। वन मोर रीजन जो उसमें ऐड करना है और सेकेंड रीजन में नेक्स्ट पेज के ऊपर उसको लिख देंगे। जब कभी आप इंडिफरेंस कर्व को कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरियन है, तो कॉन्वेक्सिटी इज ऑलवेज ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से होता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को आप डिफाइन कर लीजिए, पहले डिफाइन कर लेंगे उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। MRS measures the amount of good Y। MRS measures the amount of good Y that consumer is willing to give up। MRS measures the amount of good Y that consumer is willing to give up in order to consume one more unit of good X। MRS measures the amount of good Y that consumer is willing to give up in order to consume one more unit of good X so that utility remains constant। जो स्टेटमेंट आपने लिख रखा है उसको दोबारा से पढ़ लेंगे। MRS measures the amount of good Y that consumer is willing to give up in order to consume one more unit of good X so that utility remains constant। मैथमेटिकली आप इसको ऐसे लिखेंगे, अमाउंट ऑफ गुड वाई मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मैथमेटिकली आप इसको dy by ds कह सकते हो, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, एंड whenever you differentiate you get what? Slope। So what is slope of indifference curve? Slope of indifference curve is MRS। और बिगिनिंग में आपने प्रूव कर रखा है कि स्लोप डिक्रीज हो रहा है। जब यहाँ पे नंबर लिखा था 5 और 20 का,
तो इस पॉइंट पे स्लोप आया था -4। जब बी पॉइंट पे आपने वैल्यू लिखा था 10 और 10 पे, तो एट दैट पॉइंट स्लोप वाज -1। स्लोप इज डिक्लाइनिंग, देयरफॉर इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। एंड हाउ टू कैलकुलेट? MRS कैलकुलेट होता है बाई रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स, MUX अपॉन MUY। एंड हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी? डिफ्रेंशिएट करना फंक्शन को, फंक्शन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा। तो व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन है x1 x2। So marginal utility of x1 is what? Derivative of function with respect to x1 keeping x2 constant। तो अगर x1 इंटू x2 का डिफ्रेंशिएट करते हैं x1 के रेस्पेक्ट में कीपिंग x2 कांस्टेंट, तो वैल्यू रह जाएगा x2। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 अगर निकाल रहे हैं तो फंक्शन डिफ्रेंशिएट होगा x2 के रेस्पेक्ट में, x1 रह गया। फिर MRS की वैल्यू हो जाएगी x2 अपॉन x1। अब आप इस फॉर्मूले को इस न्यूमेरिकल में अप्लाई कर लीजिए। ए पॉइंट पे x2 20 है, x1 5 है, तो 20/5 वैल्यू 4। नेगेटिव साइन नेगेटिव स्लोप के लिए, नंबर के लिए नहीं। तो ये 20/5 हो गया। नेक्स्ट पे 10/10, और अगर यहाँ कोई नंबर लिखा था जैसे आपने सी पॉइंट पे ये 20 और इधर लिखा था 5, तो इट विल बी 5 अपॉन 21/4। दो रीजन है कॉन्वेक्स होने के लिए, MRS डिमिनिशिंग होना चाहिए और एवरेज प्रेफर्ड और एक्सट्रीम होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में कॉन्वेक्सिटी की प्रॉपर्टी है, इसको जरा ध्यान से रखिएगा। MRS कैलकुलेट करना, मीनिंग को भी याद रखेंगे। जैसे रीडिंग के बैक में क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द MRS ऑफ $1 बिल फॉर $5 बिल। चैप्टर के बैक में कुछ क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द MRS ऑफ $1 बिल फॉर $5 बिल। Now your answer could be 1/5 or your answer could be 5 also. But question ने पूछा what is the MRS of $1 bill for $5 bill। तो अब आप ये बताओ, in order to have one more unit of $1 bill, how many unit of $5 bill you are willing to give up? I repeat, in order to have one more unit of $1 bill, how many unit of $5 bill you are willing to give up? So obviously in order to have one more unit of $1 bill, you need that $1, and to get that $1, how many unit of $5 bill you are willing to give up? Obviously 1/5। 1/5 अगर मैंने $5 bill सेल किया, then I will get that $1। तो MRS of $1 bill for $5 bill is 1/5। But if I say MRS of $5 bill for $1 bill, तो उसका मतलब होगा in order to buy or in order to have 1 unit of $5 bill, how many unit of $1 bill you are willing to give up? So in order to have 1 unit of $5 bill, you require that $5, and to have that $5 you have to sell 5 unit of $1 bill। तो आपका जो आंसर होगा वो डिपेंड करता है कि $1 के लिए $5 पूछा गया, या फिर क्वेश्चन का फॉर्मेट था व्हाट इज MRS ऑफ $5 बिल फॉर $1 बिल। बट आप आइदर भी लिख सकते हो, इट कुड बी 1/5 और 5, बट जो भी आप लिखेंगे उसको इंटरप्रेट कर दीजिएगा, मतलब उसी ऑर्डर में हमारे इसको डिफाइन कर लेंगे। गुड 1 और गुड 2 हम कंसीडर क्या कर रहे हैं। अब ये फंक्शन पहला फॉर्म हो गया, फर्स्ट फॉर्म। जो लिस्ट लिखा था उस लिस्ट को जरा एक बार दोबारा देख रहे हैं। जो लिस्ट लिखा है उस लिस्ट में x1 इंटू x2 ये वेल बिहेव्ड है। इस वेल बिहेव्ड के आपने 4 प्रॉपर्टी कर रखे हैं। नेगेटिव स्लोप है मोनोटोनिसिटी की वजह से, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है ड्यू टू टू रीजन, डिमिनिशिंग MRS एंड एवरेज प्रेफर्ड और एक्सट्रीम। रिमेनिंग 2 को सिर्फ याद रखना है, इट कैन नॉट क्रॉस एंड हायर IC डिपेंड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब नेक्स्ट पार्ट में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, प्रेफरेंस नंबर 2। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का फंक्शन करना है सेकंड फॉर्म में। रिमेंबर, जो भी कंसेप्ट है उसको प्रॉपरली आप रजिस्टर में मेंटेन करते रहोगे, सो दैट वो एट द एंड सारे फंक्शन एक जगह होंगे, उसका फॉर्म एक जगह होगा,
जो स्टार्ट के चैप्टर बोले जा रहे हैं बेसिक चैप्टर, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन फाइनल पेपर के अंदर उससे कम होगा, मतलब हार्डली फर्स्ट 5 चैप्टर से यू विल गेट 1 क्वेश्चन, और रिमेनिंग के जो 5 चैप्टर्स हैं उसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब रिवील प्रेफरेंस, बाइंग सेलिंग, स्टट्स की इक्वेशन, इंटर टेम्पोरल रिस्क और अनसर्टेनिटी, इनका वेटेज फाइनल पेपर में ज़्यादा होगा। बट स्टार्ट के जो चैप्टर बेसिक चैप्टर्स की कैटेगरी में है उससे फाइनल पेपर में आपको जस्ट 1 क्वेश्चन मिलता है, इसलिए एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। और जो बेसिक चैप्टर आप यहाँ पढ़ेंगे दैट विल बी बेसिक फॉर सेम 3 माइक्रो एज वेल एज सेम 4 माइक्रो, दोनों के लिए वो रेलिवेंट होगा। नो सेकेंड फॉर्म है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। फंक्शन को लिखने का तरीका है इसमें, जनरल फॉर्म अब मैं लिख रहा हूँ ax1 प्लस bx2 वेयर a एंड b आर पॉजिटिव नंबर्स, a और b पॉजिटिव नंबर है। आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मुझे सिर्फ एक पॉइंट रिकॉल करके बताएंगे, जो फंक्शन अभी इससे पहले ड्रॉ किया था वेल बिहेव का, क्या उस फंक्शन में गुड 1 और गुड 2 एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं? या मैंने 5 और 20 लिखा था और एक बार 20 और 5 लिखा। क्या वेल बिहेव्ड के इस फंक्शन में गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं या सब्स्टिट्यूट हैं? रिमेंबर सब्स्टिट्यूशन यहां भी हो रहा है। एज यू मूव फ्रॉम ए टू बी यू कंज्यूम मोर ऑफ गुड 1 लेस ऑफ गुड 2 बट योर यूटिलिटी रिमेन सेम। दैट मीन्स हमने गुड 2 की जगह गुड 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, बट व्हाट वाज द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब व्हेन आई से रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन technically it means marginal rate of substitution. So what was marginal rate of substitution at point A? It was -4. And what was MRS at point B? It was -1/4. सब्स्टिट्यूट तो हो रहा है बट सब्स्टिट्यूट करने का रेट कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कहेंगे। सो व्हेन गुड्स विल बी कॉल्ड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तब होगा जब MRS की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम हो जाए, बट MRS की वैल्यू सेम होने का मतलब है स्लोप मस्ट बिकम सेम, एंड इफ स्लोप इज सेम द लाइन विल बी स्ट्रेट लाइन। सो इफ गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट देन इंडिफरेंस कर्व विल बिकम स्ट्रेट लाइन एंड द वैल्यू ऑफ MRS विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपने रफ में इधर अलग कर लिया है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के हेडिंग में लिख देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। डेफिनेशन लिख लीजिए। Two goods are perfect substitute when consumer is willing to substitute one good for the other. Consumer is willing to substitute one good for the other at a constant rate. One good for the other at a constant rate. It means MRS is constant. It means MRS is constant and therefore indifference curve will be straight line. And therefore indifference curve will be straight line. अब इस फंक्शन का कॉमन फॉर्म ये है। अगर इस फॉर्म से आप मार्जिनल यूटिलिटी गुड 1 का कैलकुलेट करते हैं देन यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x1 कीपिंग x2 कांस्टेंट। तो x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे a रह जाएगा, और x2 के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया तो b। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MRS? इज a अपॉन b एंड MRS इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो कॉमन टर्म में याद रखेंगे, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कब होगा? a अपॉन b। अब इसका मैं एक पैरेलल दिखा रहा हूँ, जरा एग्जांपल समझ के बताइएगा। इफ यूटिलिटी फ्रॉम x1 x2 इज रिटन एज 2x1 प्लस 3x2, मतलब a की जगह 2 लिखा है और b की जगह आपने 3 लिख रखा है। अब फंक्शन है 2x1 प्लस 3x2, तो इस फंक्शन का MRS 2/3 हो जाएगा। 2/3 will be the slope of indifference curve,
नाउ इफ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज 2/3, हाउ टू ड्रॉ दैट इंडिफरेंस कर्व? 2/3 का स्लोप लेना है। मैंने यहाँ 1, 2 और 3 इधर भी मार्क किया है, 1, 2 और 3 यहाँ भी मार्क किया है। ठीक है, बोर्ड पे देखेंगे अभी क्लियरली। स्लोप अगर 2/3 लेना है तो आपको मुझे ये बताना है कि आप इस 2 और इस 3 को ज्वाइन करे हुए, या फिर एक्स एक्सेस का 2 लेना है और वाई एक्सेस का 3 लेना है। स्लोप 2/3 है तो 2 वर्टिकल एक्सेस पे और 3 हॉरिजॉन्टल पे लेंगे, या फिर 2 हॉरिजॉन्टल पे और 3 वर्टिकल एक्सेस पे लेंगे। स्लोप 2/3 है। ज्योमेट्रिकली अगर आप इसको रिलेट करो, स्लोप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बाय बेस, p बाय b होगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ 2/3 है तो 2 परपेंडिकुलर आएगा वर्टिकल एक्सेस पे और 3 बेस में आ जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे। तो व्हेन आई से 2/3, 2 वर्टिकल एक्सेस होगा और 3 हॉरिजॉन्टल एक्सेस होगा। 2/3 के स्लोप पे आप लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और इसका मतलब एक और भी होता है, व्हेन यू ज्वाइन 2 एंड दिस 3, इट मीन्स 2 unit of good 2 is as good as 3 unit of good 1. I repeat, 2 unit of good 2 is as good as 3 unit of good 1. मतलब 2 यूनिट गुड 2 की उतनी यूटिलिटी है जितनी 3 यूनिट गुड 1 की यूटिलिटी है। और हाउ दे आर इक्वल, फंक्शन को देखा। इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली मार्जिनल यूटिलिटी गुड 1 का आएगा 2, मतलब 1 यूनिट ऑफ गुड 1 विल गिव यूटिलिटी ऑफ 2. So 3 unit of good 1 will give a utility of 6. Marginal utility good 2 का आएगा 3, मतलब 1 unit of good 2 will give a utility of 3. So 2 unit of good 2 will give a utility of 6. So in that way both are equivalent. तो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा गया है कि 2 unit of good 2 is as good as 3 unit of good 1, तो आप यहाँ 2 और यहाँ 3 लेकर के ज्वाइन कर लेंगे। अगर मैंने बोला होता 1 unit of good 1 is equivalent to 4 unit of good 2, तो 1 unit of good 1 तो इधर 1 लीजिएगा, 4 unit of good 2 तो वर्टिकल एक्सिस पे 4 और 1 का पॉइंट ज्वाइन हो जाएगा। इसको आपको अप्लाई करना होगा पेपर में। अगर फंक्शन गिवन है नो प्रॉब्लम, बट इफ फंक्शन इज नॉट गिवन, फंक्शन अगर गिवन नहीं होगा तो आपको वहाँ पे फंक्शन पहले लिखना है। और फंक्शन लिखने के लिए एक क्वेश्चन 2013 का देख लीजिए। 13 का एक क्वेश्चन आप स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, उसको आप लिख लो और इस फंक्शन को ज़रा यहाँ पे प्लॉट कर दीजिएगा। थर्टीन का फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ज़रा उस पर स्क्रीन पे देख, रीड ओनली फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बहुत पार्ट होंगे बट अभी सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ टू कमोडिटी वर्ल्ड x1 x2 स्पेसिफाई यूटिलिटी फंक्शन वेयर x1 x2 आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्वेश्चन में कह रखा है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है विथ 1 यूनिट ऑफ x1 इक्वलेंट टू 3 यूनिट ऑफ x2। तो अब आप इसके लिए फंक्शन लिख रहे हैं, यहाँ गुड 1 लिखा है मैंने, यहाँ गुड 2 लिखा है। अब आप ये बताओ किधर 1 लेना है किधर 3 लेना है। 1 unit of good 1 is equivalent to 3 unit of good 2. So take 1 here and 3 here. 3 और 1 को कनेक्ट कर दीजिएगा। 3 और 1 ज्वाइन करेंगे तो स्लोप आएगा 3:1 और जनरल फॉर्म में स्लोप होता है a upon b. So how to write utility function? कॉमन फॉर्म होता तो ax1 plus bx2 लिखते, a की जगह लेना है 3 और b की जगह लेना है 1। तो फंक्शन आपने लिखा है यूटिलिटी फ्रॉम x1 x2 इज इक्वल टू दिस। पेपर में जस्ट ये काम करना है, ये क्वेश्चन है जस्ट 1 मार्क्स का, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है डायग्राम ड्रॉ करने की, बट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इजी हो जाएगा विच वैल्यू इज a एंड विच वैल्यू इज b। इफ दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन दिस विल बी द करेक्ट आंसर, 3x1 plus 3x2। दोबारा से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में कहा गया 1 यूनिट ऑफ x1, बट आपने x1 के आगे क्या लिखा है 3 लिखा है, और इक्वलेंट टू 3 यूनिट ऑफ x2, बट x2 के आगे क्या आएगा 1 आएगा। एंड दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इक्वेशन। क्वेश्चन में रिपीट कर दे रहा हूँ जस्ट इन केस अगर कोई डाउट हो।
इसमें कहा गया 1 यूनिट ऑफ x1 इक्वलेंट टू 3 यूनिट ऑफ x2. इफ आई से 1 यूनिट ऑफ गुड 1, या कन्वर्स करके आप इसको सोच लो. क्वेश्चन में कहा गया 1 यूनिट ऑफ गुड 2 इज इक्वलेंट टू 2 यूनिट ऑफ गुड 1. 1 यूनिट ऑफ गुड 2, तो जिस गुड 2 को 1 बोला गया वो इधर लिखेगा 1, इक्वलेंट टू 2 यूनिट ऑफ गुड 2 गुड 1. 1 यूनिट ऑफ गुड 2 इज इक्वलेंट टू 2 यूनिट ऑफ गुड 1. तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 2 आएगा, और लाइन 1 और 2 को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो लाइन का स्लोप हो गया हाफ. ये a बाई बी है. देयरफॉर हाउ टू राइट इक्वेशन. इक्वेशन में आ जाएगा x1 प्लस 2x2. इस फॉर्म में लिखते हैं. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, रिमेंबर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फंक्शन तभी होगा जब उस फंक्शन का MRS कांस्टेंट आएगा. और MRS कांस्टेंट आने के लिए एक और एग्जांपल के फॉर्म में आप रिलेट कर. मैंने इसका जनरलाइज फॉर्म लिखा है ax1 प्लस bx2, और यहाँ से MRS कैलकुलेट किया जिसकी वैल्यू आई a बाई बी. और ये नंबर कांस्टेंट है. नंबर कांस्टेंट है इसलिए इंडिफरेंस का स्ट्रेट लाइन है. सिर्फ ये बताओ कि अगर इस लाइन के लिए आपने इस फंक्शन का MRS a बाई बी है, इंडिफरेंस का ड्रॉ कर रखा है स्ट्रेट लाइन. अगर क्वेश्चन पेपर में ये ax1 प्लस bx2 का होल स्क्वायर आ गया, तो अगर पेपर में वहाँ ax1 प्लस bx2 का होल स्क्वायर आ गया और आपने ये सिर्फ याद कर रखा है, तो क्या वो फंक्शन भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होने के लिए रिक्वायरमेंट है MRS की वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए. और MRS निकालने के लिए मुझे क्या निकालना है? पहले मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x निकालना है. उसके लिए ये फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ये पहले कैलकुलेट कर लेंगे. फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y निकालेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया वो निकाल लीजिएगा. आफ्टर दैट यू विल कैलकुलेट MRS विच इज रेशियो ऑफ दीज टू नंबर. और अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करेंगे तो रिमेंबर इस फंक्शन में भी MRS a बाई बी आ रहा है. आप अगर MRS a बाई बी आ रहा है और a और b कांस्टेंट नंबर है, मतलब MRS is still constant. So since MRS is constant, therefore line will again be straight. तो अगर फंक्शन ax1 प्लस bx2 है तो भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ax1 प्लस bx2 का होल स्क्वायर है तो भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है. बट इससे अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट लिखने का ये दूसरा तरीका है तो कोई थर्ड वे भी हो सकता होगा, फोर्थ वे भी हो सकता होगा. एक ही फंक्शन को आप कई फॉर्म में बदल करके ले सकते हैं, मतलब उसकी मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है. और वो मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर नंबर 4 के अंदर इंक्लूड हो जाएगा. तो डोंट रिमेंबर कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बोला है तो यू हैव टू राइट ओनली दिस. बुक में ये लिखा है बट पेपर में काम उससे नहीं चलेगा. यू मस्ट फॉलो द लॉजिक और कंसेप्ट. इन ऑर्डर टू बी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ MRS मस्ट बी कॉन्स्टेंट, विच मीन्स इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम x1 एंड x2. अगर वो x1 x2 का फंक्शन आ रहा है फिर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होगा. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होने के लिए MRS की वैल्यू कांस्टेंट होनी जरूरी है. तो सेकंड फंक्शन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का है. अब उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली इस क्लास के लिए थर्ड और लास्ट फॉर्म कर लेंगे. थर्ड फॉर्म कर रखा है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, तो रजिस्टर में नेक्स्ट एडिंग परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट किया जाएगी. फंक्शन का थर्ड फॉर्म है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट. पहले तो ये बताना है कि विच कमोडिटी विल बी रेफर्ड एज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट. कौन से दो गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं. अगर मैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूँ तो उसका मतलब क्या हुआ, और अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है. देयर इज अ डिफरेंस. कॉम्प्लीमेंट मीन्स बोथ गुड्स मस्ट बी यूज्ड टुगेदर, एंड व्हेन आई से परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स बोथ गुड्स मस्ट बी यूज्ड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. कॉम्प्लीमेंट होने पे बोथ गुड्स मस्ट बी यूज्ड टुगेदर. टी एंड शुगर इज कॉम्प्लीमेंट वी कैन से.
but it is not necessary that it is perfect complement. Perfect complement तब हो जाएगा when I say a consumer always take 2 spoon of sugar with 1 cup of tea. Proportion fix कर दिया मैंने, तो अगर proportion fix होगा then it will be called perfect complement. Say left shoe and right shoe 1:1 का proportion है, it cannot be used in a different proportion. तो perfect complement फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन कर लेंगे, रजिस्टर में लिख लीजिए वन लाइन. 2 goods are perfect complement when 2 goods are perfect complement when both goods are used together in a fixed proportion. Both goods are used together in a fixed proportion. एग्जाम्पल के फॉर्म में लेफ्ट शू एंड राइट शू. इसका जनरल फॉर्म होता है मिनिमम ऑफ AX1, BX2. अगेन A and B आर कांस्टेंट नंबर. एग्जाम्पल पहले इजी. इफ आई से यूटिलिटी फ्रॉम लेफ्ट शू एंड राइट शू, then you will write minimum of number of left shoe and right shoe. इस फंक्शन में a और b दोनों की वैल्यू 1 होगी, 1:1 का रेशियो है. नाउ यूटिलिटी फ्रॉम, मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ यहाँ बताएंगे. यूटिलिटी फ्रॉम 1,1, तो क्या लिखेगा? मिनिमम ऑफ 1,1. मिनिमम ऑफ 1,1 इज 1. यूटिलिटी फ्रॉम 1,2, 1,2 का मतलब हो गया लेफ्ट शू हमने सेम रख दिया, राइट शू की वैल्यू बढ़ा दी है. तो व्हाट इज मिनिमम ऑफ 1,2? अगेन इट इज 1. यूटिलिटी ऑफ 1,3, व्हाट इज मिनिमम ऑफ 1,3? द वैल्यू विल रिमेन सेम. वैसे अगर आप राइट को कांस्टेंट रखते हुए लेफ्ट बढ़ाएंगे तो भी उसकी वैल्यू सेम रह जाएगी. तो हाउ टू प्लॉट these values? यहाँ लेफ्ट शू लिखा है और यहाँ राइट शू लिखा है, लेफ्ट और राइट. 1,1, 1 और 1 का पॉइंट एक मार्क किया, 1 और 1 का पॉइंट इधर आ गया. 1 लेफ्ट शू 1 राइट शू. 1,2 लेफ्ट शू 1 रहना है, राइट शू 2, तो वैल्यू पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा. 1,3 पॉइंट यहाँ बन जाएगा. और वैसे बताना, अगर हमने राइट को सेम रखते हुए लेफ्ट शू की वैल्यू बढ़ाई होती तो ये सारे डॉट फिर इधर हॉरिजॉन्टल बनते जाएंगे. अब जितने भी डॉट मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, ईच डॉट की यूटिलिटी कितनी होगी? बंडल आप कोई भी लो, यूटिलिटी 1 है. एंड इफ यू ज्वाइन ऑल दोज बंडल यू गेट इंडिफरेंस कर्व. सो इंडिफरेंस कर्व इज L शेप्ड, और इसे किंक्ड भी कहते हैं. किंक का मतलब ये बेंड है, पॉइंट है. बट ये पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ किंक कहाँ पे होगा? ये 1:1 पे हमेशा नहीं होना. ये तो लेफ्ट शू और राइट शू के एग्जांपल में है. आपको पेपर में कैसे पता चलेगा ये किंक का पॉइंट आपको कहाँ पे ड्रॉ करना है? 1,1 पे बनाना है या 1,2 पे बनाना है या 1,3 पे बनाना है? उसके लिए सिंपल सा एक टूल बता रहा हूँ, उसको फॉलो करना. बताओ लेफ्ट और राइट शू का प्रोपोर्शन क्या आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? प्रोपोर्शन है 1:1. तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं फिर L = R. इफ लेफ्ट शू अपॉन राइट शू इज 1 देन L मस्ट बी इक्वल टू R. तो अब आप तरीका इसको ऐसे फॉलो करो. जो भी वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में गिवन है आप उसको इक्वेट कर देंगे, और इक्वेट करने के बाद आप रेशियो लिख लेना. मतलब प्रोसेस अपोजिट करना, लॉजिक के अकॉर्डिंगली नहीं. जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी है उसको आप इक्वेट कर दो, वहाँ से फिर रेशियो निकाल लीजिएगा. उसको यहाँ पर अप्लाई करके देखना. ब्रैकेट में क्या लिखा है? AX1, BX2. तो मैंने AX1 को BX2 से इक्वेट किया. अब मैं पूछूं व्हाट इज X1 अपॉन X2, तो क्या कहेंगे? X1 अपॉन X2 की वैल्यू हो जाएगी B अपॉन A. तो रिमेंबर B अपॉन A के प्रपोर्शन में गुड्स कंज्यूम होगा. इसको आप एक सेपरेट एग्जांपल के अकॉर्डिंगली बताना. एक फंक्शन से क्लियर हो जाएगा. यूटिलिटी फ्रॉम X1 X2 इज इक्वल टू
मैंने लिखा मिनिमम ऑफ 2x1 कॉमा 3x2। ना हाउ टू प्लॉट इट, तो बताइए ब्रैकेट में क्या लिखा है 2x1 कॉमा 3x2, तो मैंने इसे 2x1 इक्वल टू 3x2 लिख दिया। फिर x1 अपॉन x2 की वैल्यू आ गई 3/2, यहाँ तक लिख देंगे और उसके बाद इसको प्लॉट कर लीजिएगा। x1 यहाँ लिखना है, x2 यहाँ लिखना है। x1 की क्वांटिटी कितनी लेनी है 3 और x2 की क्वांटिटी 2, तो x1 मतलब गुड 1 वाले एक्सिस पे लेंगे 3, 1 2 3, और गुड 2 वाले एक्सिस पे लीजिएगा 2, और इस पॉइंट पे एल शेप ड्रॉ करना है। मैं पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, जो भी यहाँ ब्रैकेट में गिवन है आपने ब्रैकेट में दिए गए नंबर को इक्वेट कर दिया। इक्वेट इस रेशियो को निकालने के लिए किया। एक्चुअल में मुझे पहले ये स्टेप लिखना था फिर ये लिखना था, बट याद रखने को ये ईजी है। ब्रैकेट में दिए गए नंबर को पहले आपने इक्वेट कर दिया, वहाँ से आपने ये रेशियो ले लिया। रेशियो आ गया 3:2, गुड 1 3 लेना है तो x एक्सेस पे 3 का पॉइंट ले लेंगे और x2 की वैल्यू 2 लेनी है, y एक्सेस पे आप 2 का पॉइंट ले लीजिएगा। 3 और 2 का जहाँ पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे आपको एल शेप ड्रॉ कर देना है। बट वंस आपने एक बार यहाँ किंक ड्रॉ कर लिया है, ऑल किंक मस्ट बी ऑन सेम लाइन, यू कांट चेंज दैट प्रोपोर्शन। आप उस प्रोपोर्शन को चेंज नहीं करेंगे। तो पॉइंट याद रहेगा, जब मिनिमम का फंक्शन होगा तो मिनिमम के फंक्शन में आपको ब्रैकेट की दी गई वैल्यू को इक्वेट कर दीजिए, या फिर स्टेटमेंट के अंदर अगर ये फंक्शन गिवन नहीं है और सिर्फ एक लाइन लिखी गई है और लाइन इस फॉर्म में है। अगेन ये क्वेश्चन 13 का जो फर्स्ट क्वेश्चन कर रखा था उसी का आप ये जरा सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। 13 का क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन को जरा रेफर करेंगे दोबारा। इसका अभी आपने फर्स्ट पार्ट कर रखा था, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। रीड दिस सेकंड क्वेश्चन नाउ। In a two commodity world, specify the utility function where x1 x2 are perfect complement and 1 unit of x1 is always used with 4 unit of x2. इस सेकंड फॉर्म के लिए you have to write utility function. क्वेश्चन में कभी भी अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो तो मिनिमम लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिखने की जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप ये बताओ क्वेश्चन में x1 और x2 किस प्रोपोर्शन में कंज्यूम करने को कहा गया। 1 unit of x1 is always used with 4 unit of x2. 1x1 4x2, x1 by x2 1/4 हो गया। therefore 4x1 is equal to x2। इक्वेट करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो नंबर आप यहाँ लिख देंगे 4x1, x2। और इसको ग्राफ में अगर प्लॉट करना है तो किंग का पॉइंट कहाँ लेना है। इसको अगर आप ग्राफ के अंदर प्लॉट कर रहे हैं तो किंग का पॉइंट कहाँ लेंगे। x1 वाले एक्सेस पे 1 लेना है, x2 वाले एक्सेस पे 4 लेना है। इधर 1 लीजिएगा और इधर 4, और 1 और 4 का जहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, x1 आपने 1 लिया है और वर्टिकल एक्सेस पे 4 लिया है। 4 और 1 का जहाँ पे पॉइंट आता है, एट दैट पॉइंट ड्रॉ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का फॉर्म ऐसे बनेगा किसी भी क्वेश्चन में। रिमेंबर ऐसे क्वेश्चन आपको कई सारे मिल जाएंगे। आप अगर उसी क्वेश्चन में उसके नीचे का पार्ट देखो, जो क्वेश्चन यहाँ रखा था इसका आपने ये पहले भी कर लिया। अब इस क्वेश्चन को अगर आप रीड कर लो, अ कंज्यूमर स्पेंड ऑल हिज मनी ऑन कॉफी एंड शुगर, ही ओनली ड्रिंक्स हिज कॉफी विद 2 स्पून ऑफ शुगर एंड ओनली कंज्यूम शुगर इफ इट ड्रिंक्स कॉफी। राइट यूटिलिटी फंक्शन, ग्राफ एंड डिफरेंस कर्व, व्हाट इज डिमांड फंक्शन, व्हाट इज एंजल कर्व। आपने अभी क्लास में से भी ए और बी पार्ट कर रखा है, बट इन केस अगर आपने फंक्शन गलत लिखा, प्लॉट गलत होगा, एंजल कर्व गलत आएगा, डिमांड फंक्शन गलत आएगा। फंक्शन गलत होने का मतलब पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप इसका फंक्शन लिख सकते हैं, कंज्यूमर कंज्यूम स्पेंड्स ऑल हिज मनी ऑन कॉफी एंड शुगर, ही ओनली ड्रिंक हिज कॉफी विद 2 स्पून ऑफ शुगर। 1 कॉफी एंड 2 शुगर है। कॉफी और शुगर के लिए आपको फंक्शन लिखना है 1 कॉफी एंड 2 शुगर। यूटिलिटी फ्रॉम कॉफी एंड शुगर इस फॉर्म में लिख देंगे। यूटिलिटी फ्रॉम कॉफी एंड शुगर का फॉर्म ये लिख लीजिएगा।
कॉम्प्लीमेंट है तो मिनिमम लिख दिया मैंने, और मिनिमम लिखने के बाद इस फॉर्म में वेट, मिनिमम का फंक्शन आप यहाँ लिख देंगे, और मिनिमम लिखने के बाद यूटिलिटी फंक्शन को क्लियर कर लीजिएगा। कॉफ़ी और शुगर का रेशियो है 1 कॉफ़ी एंड 2 शुगर, तो फिर 2C इज इक्वल टू S, तो यहाँ लिख देंगे 2 कॉफ़ी 1 शुगर। और प्लॉट करते समय यहाँ कॉफ़ी और शुगर लिखा है, कॉफ़ी वाले एक्सेस पे 1 लेना है, शुगर वाले एक्सेस पे 2 लीजिएगा। और इंडिफरेंस का विल बी ड्रॉन इन दिस फॉर्म। फंक्शन में कभी भी कोई प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट गिवन हो तो आपको फंक्शन लिखना आना चाहिए, और अगर फंक्शन गिवन है तो आपको उसका स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए, बोथ वेज। तो जितने भी फंक्शन है वो फंक्शन आप एक एक करके सारे फंक्शन से पहले फेमिलियर हो जाएंगे, बिकॉज एंटायर माइक्रो में इन ईच एंड एवरी चैप्टर यू हैव टू डील विथ दिस फंक्शंस। आपको मेनली इस फंक्शन से डील करना है। तो जो कंटेंट बिगिन किया है उसके अंदर रिमेंबर ये 7 फंक्शन लिखे हैं, आपने अभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किया है। नेक्स्ट में ये मैक्सिमम का, कॉब डगलस का, क्वासी लीनियर का और कॉनकेव का होता जाएगा। क्लास इसी फॉर्म में चलती जाएगी। होपफुली जब तक आपका कॉलेज ओपन होता है, तो कॉलेज ओपन होने तक माइक्रो का जो कंटेंट होगा वो ओवर हो सकता है। अराउंड 20 to 24 क्लासेज एक्चुअल में लगनी है। तो यू कैन यूज़ योर वेकेशन, छुट्टियों में एटलीस्ट अगर आप 1 पेपर भी कवर कर लेते हैं तो दैट विल बी गुड इनफ। माइक्रो में बिकॉज अप्लाइड है, ज़्यादा न्यूमेरिकल होगा, और क्लास बिगिन जब होगा तो कॉलेज में स्टार्ट के जो बेसिक चैप्टर होते हैं वो बहुत तेज़ी से हो जाएंगे कॉलेज के अंदर। तो एटलीस्ट वो चैप्टर तो कवर करके रखना है। बेटर होगा अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, और टाइम का बेटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो कॉलेज खुलने से पहले तो वी विल ट्राई टू कवर यूनिट 1 एंड यूनिट 2 बोथ। इन टोटल 20 to 24 क्लासेस एक्चुअल में लगनी है। सो यू हैव इनफ टाइम, पूरा कंप्लीट जून का मंथ है और इवन 20th ऑफ जुलाई तक का टाइम है। तो यू हैव अराउंड 50 डेज। तो 50 डेज में एटलीस्ट माइक्रो का कंटेंट कर लोगे तो मैक्रो में थोड़ा सा बर्डन कम रहेगा। जो ऑनलाइन की क्लास अटेंड कर रहे हो याद रखिएगा, जैसे ऑफलाइन की क्लास हो रही है उसी फॉर्मेट में आप रजिस्टर में सारी चीज़ें मेंटेन करके रखेंगे। मतलब नोट्स के लिए योर क्लास नोट्स विल बी इनफ। दैट क्लास नोट्स विल कंटेन ऑल द कंसेप्ट, all workbook questions as well as previous year questions। हमारे एंड से आपको वर्कबुक का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक स्पायरल मिल जाएगा। मतलब ये बुकलेट मिलेगी। इस बुकलेट के अंदर पास पेपर होंगे, साथ में जो वेरिएंट वर्कबुक के चैप्टर के बैक में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन होगा। इसके अलावा इन सारे प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशन सेट आपको मेल पे मिल जाएगा सेपरेटली, दोज हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन, या फिजिकल फॉर्म में चाहिए तो आप सेंटर से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लास नंबर 2 कंटिन्यू रखेंगे यहाँ से, फ्रॉम मैक्सिमम फंक्शन देन कॉब डगलस एंड दिस। आई होप ये क्लास आपके लिए यूज़फुल होगा। छुट्टियों का थोड़ा यूज़ करना। स्टार्ट हमने चैप्टर 3 और 4 से किया। आफ्टर फिनिशिंग चैप्टर नंबर 3 एंड 4 वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 2 और देन वी विल फॉलो द सीक्वेंस। जो कंटेंट है उसमें आपने बिगिन यहाँ से किया है। चैप्टर नंबर 3 और 4 को क्लब करके पढ़ना है, वो सेपरेट एक्चुअल में चैप्टर नहीं है। यहाँ ग्राफ आएगा और यहाँ फंक्शन आना है। आफ्टर 3 and 4 बजट कंस्ट्रेंट एंड देन चॉइस, डिमांड एंड सो ऑन। ठीक है, विल कंटिन्यू विथ क्लास नंबर 2 विथ प्रेफरेंस एंड यूटिलिटी। थैंक यू।